آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز، مسلمان سائنسدان، مسلم سائنٹسٹ، جانداروں کی تنظیم کے درجات، دا لیول آف آرگنائزیشن آف آرگینزمز، سیلولر تنظیم، سیلولر آرگنائزیشن۔ آئیے سب سے پہلے ہم ڈی این اے کے متعلق کچھ دلچسپ حقائق دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مس ڈی این ایز کلاس روم۔ میں ہوں مس ڈی این اے، میرا پورا نام ہے ڈیاکسی رائبو نیوکلک ایسڈ۔ مجھے سب سے پہلے جیمز واٹسن اینڈ فرانس کرک نے دریافت کیا۔ ہم سب 99.9% ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جینز ڈی این اے کا صرف 3% بناتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم 9th کلاس کی بایولوجی کے چیپٹر نمبر 1 بایولوجی کا تعارف یعنی انٹروڈکشن ٹو بایولوجی میں رول آف مسلم سائنٹسٹ یعنی مسلمان سائنسدانوں کا کردار کے بارے میں سب سے پہلے پڑھیں گے۔ مسلمان سائنسدان، مسلم سائنٹسٹ۔ مسلمان سائنسدانوں نے سائنس کے مطالعے میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں اور ہم سائنس کے مختلف میدانوں میں ان کی کامیابیوں سے آشنا ہیں۔ یہاں ہم جابر بن حیان، عبد الملک اسماعی اور بو علی سینا کے کام کا خلاصہ بیان کریں گے جو پودوں اور جانوروں کے موجودہ علم کی بنیاد بنا۔ جابر بن حیان 721 to 815 AD۔ جابر بن حیان ایران میں پیدا ہوئے اور انہوں نے عراق میں طب کی پریکٹس کی۔ انہوں نے کیمسٹری میں تجرباتی تحقیق کا عمل متعارف کروایا اور پودوں اور جانوروں پر کئی کتب بھی تحریر کی۔ ان کی مشہور کتب النباتات اور الحیوان ہیں۔ عبد الملک اسماعی 740 to 828 AD۔ انہیں پہلا مسلمان سائنسدان مانا جاتا ہے جس نے جانوروں کا تفصیل سے مطالعہ کیا۔ ان کی مشہور تحریروں میں الابل، اونٹ، الخیل، گھوڑا، الوحوش، جانور اور خلق الانسان شامل ہیں۔ بو علی سینا 980 to 1037 AD۔ انہیں علم طب کا بانی مانا جاتا ہے۔ بو علی سینا کو مغرب میں ایویسینا پکارا جاتا ہے۔ وہ ایک طبیب، فلاسفر، ماہر فلکیات اور ایک شاعر تھے۔ ان کی ایک کتاب القانون فی الطب کو مغرب میں علم طب کے قانون کا درجہ حاصل ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، مسلمان سائنسدان کو پڑھنے کے بعد اب ہم دی لیول آف آرگنائزیشن آف آرگینزمز یعنی جانداروں کی تنظیم کے درجات کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے جانتے ہیں۔ لیولز آف آرگنائزیشن۔ زندگی کے مختلف مظاہر کو سمجھنے کے لیے بایولوجسٹ بایولوجیکل آرگنائزیشن کے مختلف لیولز کو اسٹڈی کرتے ہیں جن میں جسم کے مختلف حصوں کی ارینجمنٹ اور پھر ان کا ایکو سسٹم سے تعلق شامل ہے۔ پہلا لیول سب اٹامک اینڈ اٹامک لیول ہے۔ ہر قسم کا میٹر ایلیمنٹس یا ایٹم سے مل کر بنتا ہے اور ہر ایٹم مختلف سب اٹامک پارٹیکلز پر مشتمل ہوتا ہے جن میں الیکٹرانز، پروٹونز اور نیوٹرونز شامل ہیں۔ پروٹونز اور نیوٹرونز نیوکلیس کے اندر پائے جاتے ہیں جبکہ الیکٹرانز ان کے گرد ریوالو کر رہے ہوتے ہیں۔ نیچر میں 92 ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جن میں سے 16 بائیو ایلیمنٹس ہیں، یعنی یہ لیونگ سسٹم میں موجود ہوتے ہیں، اور ان میں سے صرف 6 بائیو ایلیمنٹس باڈی کا 99% بناتے ہیں۔ ان میں آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کیلشیم اور فاسفورس شامل ہیں۔ باقی کا 1% دوسرے 10 بائیو ایلیمنٹس بناتے ہیں جن میں پوٹاشیم، سلفر، کلورین، سوڈیم، میگنیشیم، آئرن، کاپر، مینگنیز، زنک اور آیوڈین شامل ہیں۔ دوسرا لیول مالیکیولر لیول ہے۔ اکثر بائیو ایلیمنٹس سنگل فارم میں ایگزسٹ نہیں کرتے بلکہ وہ کوویلنٹ یا آئونک بانڈنگ کی مدد سے اسٹیبل پارٹیکلز بنا لیتے ہیں جن کو بائیو مالیکیولز کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل واٹر مالیکیول جو کہ ایک آکسیجن ایٹم اور 2 ہائیڈروجن ایٹم سے مل کر بنتا ہے جو کہ ایک خاص ارینجمنٹ میں جڑے ہوتے ہیں۔ مالیکیولز 2 قسم کے ہوتے ہیں، مائکرو مالیکیولز اور میکرو مالیکیولز۔ مائکرو مالیکیولز کا مالیکولر ویٹ کم ہوتا ہے جیسے کہ گلوکوز اور واٹر مالیکیولز،
मैक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स। तीसरा लेवल ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल है। ऑर्गेनेल्स ऐसे सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो मुख्तलिफ बायोमोलिक्यूल्स के खास तरह से मिलने से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में अहम किरदार अदा करते हैं, राइबोसोम्स, जो प्रोटीन सिंथेसिस में बुनियादी किरदार अदा करते हैं, और न्यूक्लियस, जिसमें सेल की तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। न्यूक्लियस किसी सेल का इंतहाई अहम और बुनियादी ऑर्गेनेल होता है जो कि किसी सेल के तमाम फंक्शंस और कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर पोर्स पर मुश्तमिल होता है। मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स आपस में मिलकर सेल बनाते हैं जो कि जिंदगी की बुनियादी इकाई है। किसी सेल के बेसिक ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया शामिल हैं। प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट सिर्फ सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए ये यूनिसेलुलर कहलाते हैं, जबकि प्लांट्स, एनिमल्स और बहुत सी फंजाई ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। चौथा लेवल टिश्यू लेवल है। जब एक जैसे बहुत से सेल्स ग्रुप की शक्ल में मिलकर एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इन्हें टिश्यू कहा जाता है, जैसे कि गैस्ट्रिक टिश्यू, जो कि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं। इसके अलावा टिश्यूज के एग्जाम्पल में नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू शामिल हैं। पांचवा लेवल है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यूज जो बाहमी रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो बाहमी मिलाप से एक ऑर्गन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टमक एक ऑर्गन है जो कि ग़िज़ा में मौजूद प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने और उसे कुछ देर के लिए स्टोर करने में अहम किरदार अदा करता है। ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल है। जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स बाहमी मिलकर रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो बाहम मुरत्तब ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इस ऑर्गन सिस्टम में मौजूद हर ऑर्गन मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि बाहम उस ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन मालूम होता है। मसलन डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो कि खुराक के इंतज़ाम में किरदार अदा करता है। इस सिस्टम के मेजर ऑर्गन्स में ऑरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर और पैंक्रियाज शामिल हैं, जिनमें से हर एक इनफरादी तौर पर खुराक की डाइजेशन में मदद देता है। छठा लेवल है इंडिविजुअल लेवल। मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स बहुत मुरत्तब तरीके से आपस में मिलकर एक मुकम्मल फर्द यानी इंडिविजुअल बनाते हैं। सातवां लेवल पॉपुलेशन लेवल है। जब एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद या ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह और एक ही मुकाम पर पाए जाएं तो उसे पॉपुलेशन या आबादी कहा जाता है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2010 में पाकिस्तान की आबादी 173.5 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल थी। एक ही पॉपुलेशन में रहने वाले अफराद आपस में इंटरैक्ट करते हैं और ये पॉपुलेशन एक ख़ास इलाका और ख़ास स्पीशी तक महदूद होती है। एक ही इन्वायरमेंट में जानदारों की मुख्तलिफ पॉपुलेशंस कम्युनिटी कहलाती हैं। इस कम्युनिटी में मुख्तलिफ स्पीशीज़ की पॉपुलेशन मौजूद हो सकती हैं, जैसा कि फॉरेस्ट कम्युनिटी, जिसमें पौधे और तमाम जानवर मसलन शेर, ज़ेब्रा, ज़राफ़ा, हाथी, परिंदे
कीड़े मकोड़े, हत्ता कि बैक्टीरिया और फंजाई भी एक ही इलाके में पाए जाते हैं। इन सब के बाहमी मिलाप से एक इंतहाई मजबूत निज़ाम वजूद में आता है। या फिर पॉन्ड कम्युनिटी, ये भी एक इंतहाई मजबूत निज़ाम है जिसमें एक पॉपुलेशन के कम या ज़्यादा होने से दूसरी पॉपुलेशन पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स के कम होने से इंसेक्ट्स और एनिमल्स कम हो सकते हैं और इंसेक्ट्स के कम होने से फ्रॉग्स और टर्टल की तादाद भी कम हो सकती है। नवा लेवल है बायोस्फीयर लेवल। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ जानदारों की कम्युनिटीज आबाद हैं उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। यानी बायोस्फीयर ऐसे इकोसिस्टम्स पर मुश्तमिल है जिनमें इन्वायरमेंट के तमाम नॉन लिविंग कंपोनेंट शामिल हैं। इसी मुनासबत से इन्हें एटमॉस्फेयर, इकोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर कहा जाता है। बस हम कह सकते हैं कि ज़मीन पर रहने वाली सब कम्युनिटीज़ और जिस इन्वायरमेंट में ये सब रहती हैं उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। आपने देखा कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बतदरीज कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। इसकी शुरुआत होती है एक इंतहाई छोटे पार्टिकल यानी एटम से, जो मिलकर मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और फिर बायोस्फीयर बनाता है। उम्मीद है कि आपको द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी जानदारों की तंजीम के दर्जात समझ आ गए होंगे। आइए अब हम एक और वीडियो देखते हैं जानदारों की तंजीम के दर्जात के मुतालिक। हमारा जिस्म इंजीनियरिंग का एक कमाल शाहकार है। ये कैसे काम करता है, कैसे हमारे सारे अज़ा इकट्ठे होकर हमें जिंदा रखते हैं, हमें मुतहर्रिक रखते हैं और हमें हमारे मकासद हासिल करने में मदद फ्राहम करते हैं। इस वीडियो में हम जानदारों में ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स को देखेंगे जो कि सेल से लेकर ऑर्गन्स तक होते हैं। यूनिसेलुलर जानदारों में एक ही सेल जिंदगी के तमाम काम सर अंजाम देता है, ताहम मल्टी सेलुलर जानदारों में ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत से दर्जात होते हैं। तमाम जानदार सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, यही इनको जानदार के तौर पर मुमताज़ करता है। सेल्स जिंदगी की बुनियादी इकाई हैं। सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनालिस होते हैं। ये खास किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं जिनके मखसूस काम और फंक्शंस हैं। जैसा कि इस एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी फ्राहम करता है, जबकि राइबोसोम्स इसके प्रोटीन फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। सेल्स बजाते खुद बुनियादी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मिलकर जानदार बनाते हैं। मल्टी सेलुलर जानदारों में इनको मुख्तलिफ काम करने के लिए मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सेल्स के ग्रुप्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। इंसानों में 4 किस्म के बुनियादी टिश्यूज होते हैं। पौधों में जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज की मिसालें हैं। जब टिश्यूज की मुख्तलिफ तहें यानी कि लेयर्स मिलकर काम करती हैं तो ये ऑर्गन्स बनाती हैं। ऑर्गन्स जिंदगी के मुख्तलिफ अवामिल सर अंजाम देने के लिए मखसूस होते हैं। तमाम जानवरों में ऑर्गन्स होते हैं, जबकि मैमल्स में 5 ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनके बगैर ये नहीं रह सकती। फेफड़े, गुर्दे, जिगर, दिल और दिमाग। पौधों में भी ऑर्गन्स होते हैं। ये मखसूस ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। ऑर्गन सिस्टम जिस्म को तरतीब देते हैं और इसको मुस्तहकम हालत में रखते हैं। इंसानी जिस्म में 11 ऑर्गन सिस्टम हैं। ऑर्गेनिजम्स एक मुकम्मल जानदार हैं जो कि ज़िंदगी के तमाम बुनियादी काम सर अंजाम दे सकते हैं। मल्टी सेलुलर जानदार ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनते हैं, जबकि यूनिसेलुलर जानदार जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर जानदारों में ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ दर्जात हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आइए अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। जानदारों को 5 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, यानी प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, पौधे और जानवर। तमाम जानदार सेल से बने होते हैं। ये सेल्स बुनियादी तौर पर 2 अक़साम के हैं। पहले ग्रुप में मौजूद जानदार प्रोकैरियोटिक सेल्स, जबकि बकिया 4 ग्रुप्स के जानदार यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। जानदारों के अक़साम बनाने के लिए सेल्स 3 तरह से तरतीब पाते हैं। सेल्स यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं और इनसे बनने वाले जानदार यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर जानदार हैं।
यूनिसेलुलर जानदारों में सिर्फ एक सेल होता है। ये दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया यूनिसेलुलर जानदार है, ये प्रोकैरियोटिक है, जिसका मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। यूग्लिना और पैरामीशियम दोनों यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर जानदार हैं, जिसका मतलब है कि इनमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस दोनों होते हैं। आइए इनकी कुछ मिसालें देखते हैं। कुछ यूनिसेलुलर जानदार बहुत गर्म जगह पर रहते हैं, जैसा कि हॉट स्प्रिंग या फिर गाय का पेट। मल्टीसेलुलर जानदारों में 2 या इससे ज्यादा सेल्स होते हैं और ये सब यूकैरियोटिक होते हैं। इसकी कुछ मिसालें मेंढक, कुत्ता और इंसान हैं। सब मल्टीसेलुलर जानदार इब्तिदा में एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और जैसे जैसे सेल बढ़ना शुरू होते हैं, तमाम सेल मुख्तलिफ खसूसियात के हामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर इंसानों में सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स एक खास तरतीब में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम से जानदार बनता है। मुख्तसरन यूनिसेलुलर जानदारों में एक सेल होता है और मल्टीसेलुलर जानदारों में 2 या इससे ज्यादा सेल्स होते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में कई यूनिसेलुलर जानदार इकट्ठे रहते हैं, लेकिन उनके दरमियान किसी किस्म की तकसीम कार डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। कॉलोनी में रहने वाले हर यूनिसेलुलर जानदार अपनी ज़िंदगी खुद गुजारता है और अपनी ज़रूरियात के लिए कॉलोनी के दूसरे जानदारों पर इन्हिसार नहीं करता। वॉलवॉक्स पानी में रहने वाला एक सब्ज अलगा है जिसमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। वॉलवॉक्स के सैकड़ों सेल्स मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ आ गई होगी। तो आइए अब हम इसको मज़ीद जानने के लिए यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का डिफरेंस देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ जानदार सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं? ये सादा जानदार जैसा कि अमेबा यूनिसेलुलर हैं। ये जिंदगी के लिए सादा डिफिजन पर इन्हिसार करते हैं। ये आमतौर पर इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आम आंख से देखा नहीं जा सकता, जैसा कि बैक्टीरिया। इसलिए इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ यूनिसेलुलर जानदार ऐसे भी हैं जिनका साइज 15 से 20 सेंटीमीटर तक होता है। दूसरे जानदार मल्टीसेलुलर हैं। ये 2 या इससे ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं और ज्यादा पेचीदा हैं। पौधों और जानवरों की कसीर तादाद मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर जानदार साइज में बड़े होते हैं और उनके सेल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं ताकि मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे सके। सेल्स के ग्रुप्स जो एक जैसे काम सर अंजाम देते हैं वो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। मखसूस ऑर्गन्स जिंदगी के मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं और मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। यूनिसेलुलर जानदार जिंदगी के तमाम अवामिल सिर्फ एक सेल से सर अंजाम देते हैं। इसके लिए ये अंदरूनी स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं जिनको ऑर्गेनालिस कहा जाता है। यूनिसेलुलर जानदारों में काबिलियत का मयार कम होता है, जबकि मल्टीसेलुलर जानदार बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं। इनमें डिवीजन, सेल, टिश्यूज या ऑर्गन सिस्टम के दर्जात पर होती है। यूनिसेलुलर जानदार हजम में बड़े नहीं होते क्योंकि ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम के तनासब से महदूद होते हैं, जबकि मल्टीसेलुलर जानदार छोटे सेल्स की तादाद को ज्यादा कर लेते हैं ताकि इनका मजमूई हजम बढ़ सके। मल्टीसेलुलर जानदारों की उम्र ज्यादा होती है क्योंकि छोटे सेल्स पर काम का बोझ निस्बतन कम होता है, जबकि एक वाहिद सेल रखने वाले यूनिसेलुलर जानदार पर काम का बोझ इतना ज्यादा होता है कि उसकी जिंदगी का दौरानिया बहुत कम रह जाता है। मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये खुराक कैसे हासिल करते हैं, लेकिन एक सेल इसका इंतज़ाम कैसे करता है। आमतौर पर फेगोसाइटोसिस से, जहाँ पर खुराक जानदार के अंदर फूड वैक्यूल में महफूज होती है। तमाम प्रोकैरियोट्स ही यूनिसेलुलर हैं, जबकि यूकैरियोट्स दोनों यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान फ़र्क को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कुछ साइंसदान इस बात को तस्लीम क्यों नहीं करते कि तमाम प्रोकैरियोट्स ही यूनिसेलुलर होते हैं। जहां तक प्रोकैरियोट्स का ताल्लुक है, ज्यादातर प्रोटिस्ट और कुछ फंजाई जैसे कि खमीर भी यूनिसेलुलर होते हैं। ये थे हमारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जानदार। आखिरी बात आपको ये बताते चलें कि अगर यूनिसेलुलर जानदार के एक सेल को कोई जख्म आ जाए तो ये खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक सेल ही इनके लिए सब कुछ है। जबकि मल्टीसेलुलर जानदारों में कुछ सेल्स की खराबी या मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन सेल्स के मुतबादिल सेल्स बन जाते हैं।
جی اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئیے اب جو ہم نے اس پورے لیکچر میں پڑھا اس کے متعلق کچھ سوالات جانتے ہیں۔ سب سے پہلا مسلمان سائنسدان کون تھا جس نے جانوروں کا تفصیل سے مطالعہ کیا؟ آپشن 1 جابر بن حیان، آپشن 2 عبد الملک اسماعی، آپشن 3 البیرونی، آپشن 4 ابو علی سینا۔ سوچیے اور اس کا جواب دیجیے کہ کیا ہوگا۔ جی ہاں، عبد الملک اسماعی از رائٹ آنسر۔ بہت خوب۔ آئیے اب ہم ایک اور سوال کو دیکھتے ہیں۔ اس سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کتنے بائیو ایلیمنٹس کل بڑے پیمانے پر 1% بناتے ہیں؟ آپشن 1 10، آپشن 2 20، آپشن 3 15، آپشن 4 30۔ اس کا جواب دیجیے اور سوچئے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، 10 از رائٹ آنسر۔ بہت خوب، ویل ڈن بچوں۔ جی اسٹوڈینٹس، اب ہم ایک اور سوال دیکھتے ہیں۔ اس سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کلونیل قسم کے پانی میں پائے جانے والے سبز رنگ کے الگا کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن 1 والواکس، آپشن 2 امیبا، آپشن 3 پیرامیشیم، آپشن 4 آل۔ جی اسٹوڈینٹس سوچئے، غور کیجئے اور اس کا جواب دیجئے۔ جی ہاں، والواکس از دا رائٹ آنسر۔ ویل ڈن۔ اسٹوڈینٹس، اب ہم ایک اور سوال کی جانب چلتے ہیں۔ اس سوال میں پوچھا گیا ہے کہ 2010 میں پاکستان میں انسانی آبادی مشتمل ہے۔ آپشن نمبر 1 173.5 ملین، آپشن 2 173.5 بلین، آپشن 3 137.5 ملین، آپشن 4 137.5 بلین۔ جی اسٹوڈنٹ سوچئے اور غور کیجئے کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ ویل ڈن، 173.5 ملین از دا رائٹ آنسر۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔